Hi there and welcome to our second session that focuses on the SNAP exam, particularly the English section of the SNAP exam. And in case you are thinking of appearing for some of those other exams like CMAT and Maharashtra CET as well, this is a session that will be useful for those exams as well. So make sure that you do remain with me, and I'd be able to take you through quite a few questions of different varieties that will hopefully enable you to prepare better for the exam. But before that, let me give you a quick overview of the SNAP. I did talk about it in the first session, but in case you were not there, and at least you'd be able to then figure out what exactly it is that you are up again. So SNAP is the shortest Indian B School exam that you are going to appear for. So you get 60 minutes. And in these 60 minutes, the exam gives you 60 questions to deal with. So pretty straightforward, 60 minutes, 60 questions. And within this exam, you have three different sections. You have Quant and DI, you happen to have reasoning, and then you have English. So these are the three sections that you go through. You can go through the details of each one of these sections in a separate video that we made for you that talks all about SNAP. There is no sectional time limit, unlike exams like the CAT and the NMAT. You are free to allocate your time any which way that you want. On top of that, there is no sectional cutoff either. So it's only your overall score that is going to matter for your shortlisting for the next rounds. Where exactly you get that score from which of these three sections, that is something that the colleges are not bothered about. And the marking scheme is +1 for every right and minus 0.25 for every wrong, which basically means that it's a 60-minute, 60 question, 60 marks exam. So a lot of 60s that you have there, and you are allowed to have 3 attempts in all, and the colleges will consider the best of the 3 scores. So the dependence on luck, of course, as a result goes down. Let me take you through the English section in greater detail. So if I look at the last 4 or 5 years, we've basically had questions from grammar, vocabulary, and at times verbal ability. So we get 15 questions from English, and within grammar, they can ask you questions that are based on fill in the blanks, questions that focus on error identification, particularly questions that test your understanding of tenses, active and passive voice, and direct and indirect speech. We also at times call it narration. Plus, they can ask you or quiz you on word order. So they may give you 4 different sentences, and then they can ask you which one of the 4 is closest to the standard word order in English. So you are supposed to be really well versed with syntax of a sentence. You are supposed to be well versed with the order of adjectives, the order of adverbs, and where different components go within a sentence in order to get these questions right. And then you can also expect questions that are designed to test your understanding of the foundation of grammar. So you can have part of speech based questions, and in those part of speech based questions, they can actually dig deep and add a lot of other category names. So it's not just about finding out pronoun. They may actually ask you to figure out whether it is a demonstrative pronoun or a distributive pronoun, right? So they can actually take you to that level. Along with that, they may also test your understanding of different types of phrases, different types of clauses, and those things can definitely enable you to perform better. So that's basically grammar. Similarly, when it comes to vocabulary, you can expect questions that are based on synonyms and antonyms, questions that test your understanding of idiomatic expressions. So basically idioms, phrasal verbs, sayings. Then there have been questions based on spellings, questions that test your understanding of something called compound words. And then there have also been occasional questions that test your understanding of root, prefix, and suffix. So if you worked with us on vocabulary, then you know what exactly it is that we are talking about. So you can go ahead and check that up. And then when it comes to verbal ability, you can get fill in the blanks, parajumbles, or verbal analogies. The surprising thing is that there is no RC, there is no reading comprehension. So people who are not very comfortable with quant, this is a paper that gives them respite.
people who are not very comfortable with RCs, this is an exam which once again offers them some respite. People who are not or people who do not have a great profile, academic profile, well, this is an exam where the shortlisting happens on the basis of the SNAP score, so that gives you some respite there. But that said, yes, there is no RC. There has not been a passage over the last few years. That does not mean that SNAP never had passages. They did test us on RCs in the past, and you know that these exams don't technically have a defined syllabus, so they may choose to reintroduce RCs. But thankfully, if you're prepared for the CAT, you should be able to deal with that in case a passage makes an appearance. So let's go ahead and practice some questions across these different types so that our understanding of the exam gets enhanced and becomes deepened. Let's go. So here is the first one. It's a verbal analogy question. What I want you to do is pause the video right here, answer this question without referring to a dictionary or without Googling, and then come back for a discussion. My expectation is that there's a kind of question where you would not probably take more than 30 seconds. So pause कीजिए, question solve कीजिए, आइए फिर उसके बाद में देखते हैं. Ready? चलिए. So sculptor is a person who makes a sculpture, है ना? क्ले से, पत्थर से मूर्ति बनाना वो स्कल्प्टर का काम है. और स्कल्प्टर की जो वर्कशॉप होती है जहां वो ये काम करता है उसे हम बोलते हैं अटेलियर. सो a sculptor works out of an atelier or works in an atelier. Okay, his place of work is called atelier. Painter's place of work is called a portrait. No, that should be a studio, right? A miner's place of work is called a quarry. हाँ, हो सकता है. Quarry is a type of mine, so this is possible. So unless we get something better. A poet's place of work is a sonnet. No, a poet can produce a sonnet, which is a special type of song. अगर मैं origin wise देखूँ ना तो sonnet का मतलब होता है little song. 14 लाइन का song होता है, एक particular rhyme scheme होती है. ख़ासतौर पे इंग्लिश वाले अगर मैं शेक्सपियरियन स्टाइल के सॉनेट्स देखूं तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है ना, राइम और रिदम की एक पर्टिकुलर स्कीम होती है, तो आप उसे सॉनेट बोलते हैं. और चूंकि छोटा होता है तो इट टिपिकली फोकसेस ऑन ओनली वन थीम और वन इमोशन. तो ये भी नहीं. अ मैन्स प्लेस ऑफ वर्क इज हाउस, ये तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है, यहाँ तो आप रहते हैं, काम थोड़ी करते हैं. हाँ, कुछ लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम की लग्जरी होती है, उनके लिए ट्रू है, बट इन जनरल नहीं. तो आई थिंक हमारा जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट रिमेन्स ऑप्शन बी. With that, let me take you over to your next question. Go ahead, pause the video, answer this, come back and then we'll talk. So, are we ready? So, चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलेशन से. देखो, savage and barbaric are both synonyms, right? ये दोनों वर्ड ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनमें सिविक सेंस नहीं है, या जो बहुत रूथलेस होंगे, इल मैनर्ड होंगे, वायलेंट होंगे, ऐसे. हाँ, सो सिनोनिम्स है. तो यू लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ सिनोनिम्स एज अ रिजल्ट. वी आर लुकिंग फॉर अ सिमिलर रिलेशनशिप आफ्टर ऑल. सो लूसिड का मतलब होता है क्लियर, और टर्बिड का मतलब होता है मडी, यानी कि नॉट क्लियर, है ना. अगर कोई टर्बिड वाटर्स हैं तो उस पानी में ना कोई मिट्टी या कोई और चीज ऐसी है जिसकी वजह से वो पानी क्लियर नहीं है. हाँ, सो क्लियर, नॉट क्लियर, ये तो एंटोनिम्स हो गए, रूल आउट कर दीजिए. स्वॉलो एंड रिजेक्ट. स्वॉलो होता है किसी चीज को अपने शरीर के अंदर ले जाना. रिजेक्ट होता है अगर इसी कंटेक्स्ट में देखूं तो शरीर के अंदर ना जाने देना या वैसे इनकार कर देना. सो दे आर गोइंग टू बी ईदर irrelevant, they'll either have no relation with each other, और अगर निकलेगा भी तो एंटोनिमस निकलेगा, तो ये भी हटा दें. प्यूराइल एंड सेनाइल. देखो, प्यूराइल होता है somebody who behaves in a very silly manner. कोई ग्रोन अप है बट ही इज नॉट एक्टिंग लाइक एन अडल्ट, तो आप बोलते हैं प्यूराइल बिहेवियर. और ऐसे सेनाइल होता है कई बार उम्र के साथ कुछ लोगों के थिंकिंग फैकल्टी काम अच्छे से नहीं करते,
है ना। देखो हिंदी में एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड तो नहीं है बट हम उसे बोल देते हैं सठिया जाना, है ना। 60 के ऊपर हो गए दिमाग नहीं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 60 के ऊपर दिमाग ना चले, बट वो सेनाइल इज व्हेन यू हैव लॉस्ट योर मेंटल फैकल्टी समवट बिकॉज ऑफ एज। तो हाँ कुछ हद तक सिमिलर है क्योंकि दोनों में सेंसिबली एक्ट नहीं किया जाएगा। वेनमस होता है जहरीला, राइट। और विरुलेंट क्या होता है? विरुलेंट इज वंस अगेन समथिंग विच इज डेंजरस, पॉइजनस, हार्मफुल एंड अफेक्ट्स यू वेरी क्विकली। तो अब यार इन दोनों में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। सेनाइल में उम्र की वजह से मेंटल फैकल्टीज अफेक्ट हो रही हैं, प्यूराइल में बंदा सिली तरीके से काम कर रहा है, सेंसिबल नहीं है। तो सिनोनिम्स हैं, ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं, लेकिन दोनों में अगर मैं डी को देखूं तो ये ज़्यादा क्लोज सिनोनिम्स हैं क्योंकि दोनों चीज़ें किसी भी आदमी को अफेक्ट करेंगी एडवर्सली और बहुत जल्दी। जबकि यहाँ पे दिस कैन बी अ मोमेंटरी नॉनसेंसिकल बिहेवियर वेयर एज दिस इज मोर और लेस समथिंग दैट इज परमानेंट। तो एक वो डिफरेंस मिलेगा फिर भी जो आपको शायद यहाँ उस तरीके से ना मिले। तो हमारा बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पर डी हो जाएगा। प्लस दिस पर्सन इज एन अडल्ट नॉट ओल्ड वेयर एज दिस पर्सन हैज टू बी ओल्ड। तो सिनोनिम्स में भी हम बोलते हैं ना देयर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। सिमिलर का मतलब उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस तो हैं, तो अगर आपको डिफरेंसेस दिखें तो दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू आंसर इट। सो देयर यू गो। चलिए आगे चलते हैं। हियर इज द थर्ड वन। वंस अगेन हिट पॉज, कम बैक एंड देन वील आंसर। ओके रेडी। तो हार्मनी होता है जहां सब लोग जो है दे आर इन सिंक, देयर इज लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट। जबकि डिस्कॉर्ड इज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो ये दोनों वर्ड्स हैं एंटोनिम्स। तो हमें यहां पे भी चाहिए एक पेयर ऑफ एंटोनिम्स और उसमें हमें पहला वर्ड पता है। पहला वर्ड है इंसुलर। अभी इंसुलर क्या होता है? somebody who is interested only in his own country or his own group and he does not care about what the other countries, other groups go ahead and say, and he's not going to be willing to accept things which are different or foreign. हाँ, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो एक तरह से ये नैरो माइंडेड हो गया ना, तो ये तो सिनोनिम बना देगा, इसे हटा ही दो। हमें इसका ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट क्या होगा? इनटॉलरेंट विल ऑल्सो बी अ सिनोनिम, हटा दो। तो दैट लीव्स यू विद कॉस्मोपॉलिटन एंड कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं? जो पीपल हु डू नॉट लाइक टू चेंज और पीपल हु आर नॉट वेरी ओपन टू चेंज, स्पेशली चेंज विच इज सडन। जबकि कॉस्मोपॉलिटन होता है एक ऐसा आउटलुक जिसमें आप दुनिया भर से चीज़ें सीखते हैं, लेते हैं, लर्न करते हैं। सो अगर इन दोनों में से किसी एक को इंसुलर का ऑपोजिट रखना हो तो कॉस्मोपॉलिटन इज वे वे बेटर देन कंजर्वेटिव। ये तो सिनोनिम की टेरिटरी में चला जाएगा और इसीलिए यहां पे हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। विद दैट थोड़ा एरर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। चलिए करके देखिए। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, एरर आइडेंटिफिकेशन इज सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन, तो आप करके बताइए और फिर देखते हैं। रेडी? बहुत सिंपल है यार, कंजंक्शन है। इनफैक्ट आपको पता है कंजंक्शंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जिनके लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, फैन बॉयज। सो फैन बॉयज का जो बी है दैट बी इज बट, और ये इस सेंटेंस में इन दोनों क्लॉजेज को आपस में ज्वाइन करने के लिए काम में आ रहा है। सो अनडाउटेडली अ कंजंक्शन। विद दैट हियर इज अनदर वन फॉर यू। व्हाट्स योर टेक? चलिए देखिए, वी डिड नॉट स्पेंड द नाइट देयर। तो ये जो है दिस टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन, and anything that talks about an action adds to the meaning of a verb is called an adverb. तो यहां पे there हमारा रहेगा adverb। और इसी तरह से let me now give you a PYQ, एक पिछले सालों का एक सवाल उठा करके दे दूं जो इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या बोलना। ये रहा क्वेश्चन, गो अहेड आंसर इट एंड देन वी विल सी। देखना शुरू करें।
आई होप आपने कर लिया हो। मैच द फॉलोइंग है। तो अनमास का मतलब होता है लार्ज नंबर्स। सो अगर सो आई कैन से यार द एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू रिजाइन अनमास। रिजाइन अनमास, लार्ज नंबर्स में रिजाइन किया। अब रिजाइन वर्ब है, ये वर्ब के साथ जाता है तो ये एडवर्ब है, यानी कि फर्स्ट का सी होना चाहिए। तो आंसर तो आई थिंक ए ही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें, उनको हम बोलेंगे नाउन। सो 2 हो गया डी। मैलेंजर, देखो कुछ लोग आपने देखा है, कुछ लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं और बोलते हैं यार मैं ना बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे चोट आई हुई, मैं काम नहीं कर सकता, यार तुम कर लो यार। ये अभी घर में कर रहे होते हैं कई बार दिवाली की सफाइयों के टाइम पे लोग ऐसी हरकतें। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मैलेंजरर, और इस एक्ट को बोला जाता है मैलेंजरिंग। हाँ, सो मैलेंजर इज अ वर्ब। और रास्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है जो वॉइस के लिए यूज करते हैं। कई बार कुछ लोगों की वॉइस ना बड़ी हॉर्स, अनप्लेजेंट, रफ होती है। हॉर्स में ये वाला हॉर्स, हाँ, कभी होता है ना गला खराब हो गया, सोर थ्रोट है तो आवाज ऐसी निकले, तो रास्पी, तो ये जनरली वॉइस के साथ आता है, इट्स एन एडजेक्टिव। सो फोर्थ का ए। सो आई थिंक ये सब ठीक ही है यार, और आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू बी रेडी फॉर व्हेन इट कम्स टू योर स्नैप एग्जाम। चलिए इसके बाद एरर आइडेंटिफिकेशन, आराम से डायरेक्शंस पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और फिर उसके बाद आप और मैं मिलकर के इसको डिस्कस कर लेंगे। डन। तो पढ़ते हैं, चलिए। गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन particularly on the speed and stealth with which the negotiations are completed। ना इस पे फोकस करो, the negotiations are completed। देखो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके साथ एक कोई बी फॉर्म का कोई वर्ड आता है। ये पैसिव वर्ब की स्ट्रक्चर है क्या? ये क्या ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है? हाँ, हो सकती है, लेकिन ये चीजें तो पास्ट में हुई, चूंकि पास्ट में हुई तो फिर आर तो नहीं आ सकता था, ये आर गलत है। तो क्या मैं यहाँ पे वेर डाल दूं? वेर विल मेक इट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हम तब यूज करेंगे जब ये काम कब हुआ वो पता हो, ये नेगोशिएशंस कब कंप्लीट हुई हमें ये पता हो। लेकिन यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रहा है नेगोशिएशंस कब कंप्लीट हुई, तो ये रूल आउट हो गया। तो एज अ रिजल्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, दैट विल बी have been। So government has reportedly made its displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiations have been completed। और इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। पिछले में नो एरर का ऑप्शन था, इसमें नो एरर का चॉइस आपके पास नहीं है। गो अहेड, सॉल्व दिस एंड वील सी। Shall we? देखें, चलिए चेक करते हैं। Understanding and forecasting capacity based on one's own organization as well as industry patterns based on other cloud-oriented organizations will be a skill in short supply। देखो अब ना हमने इसको बोल करके पढ़ा, ये देख के ठीक ही लग रहा था, पर ये उतना ठीक दरअसल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे when you say one's own organization तो आपको possessive केस चाहिए, और पोजेसिव केस जो है वो होता है वन अपॉस्ट्रफी एस, वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब आएगा तब आप बोल पाएंगे कि ये ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज रॉन्ग हियर एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन बी। हियर ट्राई आउट द नेक्स्ट वन। पॉज करो, आंसर करो, बताओ मुझे क्या सोच रहे हो। Ready? The community has dwindled to a tenth of their former size in the last 2 years। तो देखो ये जो प्रोनाउन है ये कम्युनिटी के लिए आया,
कम्युनिटी इज अ सिंगुलर नाउन विच मीन्स दैट अब हमारे पास एक रूल है ना, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट के, कोई भी प्रोनाउन अगर किसी नाउन को रिप्लेस करेगा तो उसको उस नाउन के नंबर, जेंडर और केस के साथ अग्री होना है। पर ये तो सिंगुलर है और देयर तो प्लूरल है, तो यहाँ नंबर का अग्रीमेंट नहीं आ रहा, तो ये देयर गलत है, इसकी जगह पे इट्स होना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाट वुड मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। सो द आंसर हियर शुड बी ऑप्शन सी। चलिए अब थोड़ा स्विच अप करते हैं। आपको बीच बीच में इस एग्जाम में ना फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिए जाते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। इफ यू नो दोज then maybe you can go ahead and look it up. So which of the following is an oxymoron? शुरू करें। सो ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ऑक्सीमोरोन होता है जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस या वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, है ना। जैसे जब हम बोलते हैं ओपन सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट, तो ओपन भी और सीक्रेट भी, हाँ। ही इज प्रेटी अगली, प्रेटी और अगली एक साथ, तो इस तरह की चीजें। तो यहां पर व्हेन आई लुक एट सेंटेंस ए, इसमें मुझे काइंड और क्रुएल्टी एक साथ दिख रहा है, दैट इज एन ऑक्सीमोरॉन। तो इसको एज अ रिजल्ट हम यहां पे अपना आंसर मार्क कर लेंगे। बी द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो भाई ये तो मेटाफर होता है, राइट। देन आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, पैराडॉक्स। हाँ, आर्ट वो हो जो दिखे ना के आर्ट है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी, सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ को हमने हैंड्स दे दिए तो मतलब पर्सोनिफाई कर दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी योर personification and that's going to be the answer here. इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 11 to 13 आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और फिर हैं कंक्लूजन्स। आपको उन्हें ट्रू मानना है और देखना है कि कौन कौन से सही होंगे। अब आई एम टेकिंग यू लिटिल बियॉन्ड इंग्लिश। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्नैप एग्जाम में मिलेंगे एज पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। सो द टॉपिक दैट these questions are going to test you on is called syllogism। तो आइए जरा syllogism कर लिया जाए कुछ, तो करिए, पॉज कीजिए। ये रहे प्रेमिसेस, ये रहे कंक्लूजन्स, आंसर दीजिए और फिर आप और मैं इसे डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए। रेडी? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक अप सम रूम फॉर माई सेल्फ। So all cars are vehicles, some cars are toys. तो ये हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया। आप देखें, सम व्हीकल्स आर कार्स ट्रू है, मैक्सिमम ओवरलैप में जब ऑल कार्स आर व्हीकल्स ट्रू है तो सम व्हीकल्स आर कार्स तो ट्रू होगा ही होगा, ये तो वैलिड है। नो व्हीकल इज कार, फॉल्स। नो टॉय इज व्हीकल, हमारे मिनिमम ओवरलैप में ही ये इनवैलिड है। सम टॉयज आर कार्स, मिनिमम ओवरलैप में वैलिड है। अब जब सम कार्स आर टॉयज ट्रू होगा तो सम टॉयज आर कार्स तो ट्रू होगा ही होगा, ये इसका इमीडिएट इन्फरेंस है, तो ये भी वैलिड है ही। तो इमीडिएट इन्फरेंसेस के लिए तो वी डोंट इवन बॉदर मेकिंग आर डायग्राम्स, राइट, मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम्स। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ वैलिड है, विच मीन्स दैट ऑप्शन बी शुड बी आर आंसर। चलिए इसी तरह से लेट मी टेक यू थ्रू द नेक्स्ट वन। एक डिफरेंस डाल दिया हमने, 2 की जगह 3 स्टेटमेंट दे दिए, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। सॉल्व करिए और फिर उसके बाद में देखते हैं। आइए शुरू करें। सो ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, ऑल नोट आर मोबाइल्स, सम नोट्स आर टैबलेट्स। यहीं से शुरू कर लेता हूं यार। सम नोट्स आर tablets, all note are mobile and all mobiles are laptops। तो ये हमारा मिनिमम ओवरलैप बन गया। सो कैन आई से ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल? आप देख रहे हैं तो मिनिमम ओवरलैप में फॉल्स है, तो इसे हटा दीजिए, ये भी हट गया। सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, सो सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, इस शेडेड रीजन में ये ट्रू है। और अगर मैं मैक्सिमम ओवरलैप देखूं तो n और t इक्वल हो सकते हैं और m और n इक्वल, तो उस केस में मैक्सिमम ओवरलैप में भी मोबाइल, नोट और टैबलेट
सेम हो जाएंगे. सो ऑल मोबाइल और टैबलेट हो जाएगा उसमें. सो दिस इज वैलिड. मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में चलेगा. सम नोट्स आर नॉट लैपटॉप्स, हमारे मिनिमम ओवरलैप में ही फॉल्स है तो यहीं हटा दो. सो एज अ रिजल्ट सेकेंड इज द ओनली कंक्लूजन दैट इज वैलिड, और इसलिए हमारा यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. एंड विद दैट लेट मी टेक यू ओवर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Pause the video, practice solve this, and then we will talk. Done? चलिए आइए देखें. Some machines are equipment. No machine is a radio. तो भाई मशीन और रेडियो ओवरलैप नहीं करते. Then all TV are radios. तो इसी को थोड़ा R को छोटा कर देते हैं जरा, और all TVs are radios. ये लीजिए. तो चलिए चेक करते हैं. Some equipments are machines. ये तो वैलिड है ही. अगर some machines are equipment ट्रू है तो some equipment और मशीन भी ट्रू होगा ही होगा. No TV is a machine, ये भी ट्रू है. देखो R और M ओवरलैप करते नहीं. T R से बाहर जा नहीं सकता तो ये भी ओवरलैप इसके साथ नहीं करेगा. सम रेडियोज आर टीवीज, तो भाई अगर ऑल टीवीज आर रेडियोज ट्रू है तो सम रेडियोज आर टीवीज, तो उसकी इमीडिएट इन्फरेंस होती ही है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल द थ्री कंक्लूजन्स फॉलो, एंड देयरफॉर आंसर हियर शुड बी ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो. सो देयर यू गो, दैट्स इट. अब इसके बाद अगर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. आप पॉज करें, डायरेक्शंस पढ़ें, आंसर दें, फिर देखते हैं. शुरू करें. सो दिस इज बेसिकली योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन. तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच दी हुई है. ही सेड आई सॉ अ बुक हियर. असर्टिव सेंटेंस है, कोट मार्क्स हटाएंगे तो दैट लगाना पड़ेगा. सब में लगाया. सो ही सेड दैट, ये सब में है. ही सॉ अ बुक हियर के देयर, हेयर की जगह देयर होना चाहिए था, तो जहां जहां हेयर है वो हटा दो. ही सॉ अ बुक देयर, ही हैड सीन अ बुक देयर. अब देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो ये जो पार्ट कोट मार्क्स में आता है ना, इसका टेंस चेंज किया जाता है और इसको एक टेंस पीछे ले जाते हैं. तो अगर यहां पर आपके पास सिंपल पास्ट है तो इसकी जगह पे फिर आपको होना चाहिए पास्ट परफेक्ट. तो वो डी में है, बी में टेंस चेंज नहीं किया, वो गलत हो गया. एंड दैट इज व्हाई द बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. And with that, let me give you one more question of the same variety. Let us see how you deal with it. कर लिया आपने? चेक करें. चलिए. So Rahul said to his mother, और ये चूंकि क्वेश्चन है तो said to की जगह asked हो जाएगा. So asked his mother, asked to his mother नहीं होगा. ये ठीक है, ये ठीक है. तो बी तो यही रूल आउट हो गया. अब कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ? इट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपको इफ या वेदर एज अ कंजंक्शन लगाना पड़ता है. दैट नहीं लगा सकते, इफ या वेदर होता है, तो ये भी रूल आउट हो गया. तो अब इन दोनों में कंपेयर करें तो टेंस चेंज करना है ना, इसको पास्ट में जाना पड़ेगा. कैन का कुड हो जाएगा जो कि यहां किया गया है, लेकिन डी में एक तो कैन का कुड नहीं किया, दूसरा इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले भी रख दिया जबकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा. दैट्स अनदर मिस्टेक हियर. सो बेस्ट आंसर जो है हमारा वो यहां पे होगा ऑप्शन ए, एंड दैट्स another one of those direct and indirect speech questions for you. So this is what I had brought for you in this session, but that's not by any means the last one. We will have plenty of these sessions close to your exam once the CAT gets over. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और बातें करते रहिए मुझसे. और ध्यान में एक चीज ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू विन, यू आर ऑब्लिगेटेड टू कीप ट्राइंग टू डू द बेस्ट यू कैन एवरी डे. जीतना आपके हाथ में नहीं है, कोशिश करना आपके हाथ में है. तो हर रोज अपनी बेस्ट कोशिश करनी है, वो जिम्मेदारी आपकी है. अगर वो करते रहेंगे आप तो यू विल डेफिनेटली गो ऑन एंड डू अमेजिंगली वेल इन द एग्जाम्स and in life. So that's it from me today. I'll see you in the next one. Have a great time ahead.